Hello everyone, I'm Namrata Jain and welcome to my channel Happy Lifestyle, where we talk about happiness, health, positive mindset, and yes, how to have a happy and a healthy lifestyle. Yes friends, on my channel I'm coming up with an amazing series that is a healthy tea time show. इसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ टॉप पर्सनालिटीज़ से जिन्होंने सोसाइटी में अपना बेंचमार्क सेट किया है और इसी सीरीज़ में हमारी फर्स्ट गेस्ट जो हमारे अमेजिंग से सीरीज़ में आने वाली हैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है. शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज़ मिसेस अर्थ इंटरनेशनल 2018. अब तो आप सब लोगों ने आई सपोज गेस कर ही लिया होगा. शी इज़ अ टेडिक्स स्पीकर, a YouTuber who runs 3 channels and on each channel she has almost million subscribers. She's an actress, guys. She's a brand ambassador of Beti Bachao, Beti Padhao. And yes, just now she has launched an amazing pageant hunt that is Fit and Glam, in which she is actually giving opportunities to showcase the talent of young girls and women. How amazing it is. So guys, here I would like to acknowledge Dr. Sonal Parihar. So ma'am, I would like to welcome you on my channel. Thank you so much for sparing your time. Thank you, Namrata. Thank you for calling me. So ma'am, being a female, I want to ask you कि आप इतने सारे tags कैसे साथ में manage करते हैं? It's very difficult. Well, if you have a passion for something, I think it's very easy. I'm a person who has been a very passionate person from the very beginning. If I do something, मैं पूरे passion के साथ, पूरे perfection के साथ करती हूँ. And I don't take up things which I can't do. So that is it, and I love touching all the horizons of life. अभी मेरे को अगर कोई काम दिया जाएगा तो मैं उसको इतना perfectly करूँगी भले ही मेरे बाकी सारे काम compromise हो जाए. So I'm a person who goes out of the comfort zone कि करना है तो करना है. And एक चीज़ से मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. तो when I was a kid, I was a very meritorious student and शुरू से डॉक्टर बनने का सपना था. डॉक्टर बनने के बाद डिग्रीज लेने का सपना था. Then I got married, so I wanted a perfect family. तो बच्चों की तरफ जो मेरी वो थे ड्यूटीज़ थी वो मैंने सारी करी. देन आफ्टर 35 आई फेल्ट क्वाइट सेटल, सो आई एंटर्ड द ग्लैमर वर्ल्ड. बट देन जो चीज़ पहले करी थी उसको छोड़ा नहीं. आई डोंट कीप आई कीप all the tags with me. I walk with everything. I just don't leave कि ये छोड़ के दूसरे में आ गए. I don't jump. I just keep everything together. So that's easy, I think, because I'm a very passionate person. So this means that you really want to live your life to the fullest, right? Yes, right. Lovely. Okay ma'am, my another question is, how can you always be on a run and who and what is your fuel, ma'am? Okay, being a family person, I think the main driving thing is my husband right now, because he understands me completely, that I'm a very passionate person, and he knows that if I don't get something, or if I put it the other way, if I don't excel in something, I'll feel bad and I will not be my normal self. So he helps me getting to that extent, and if I want to practice till say about 4 a.m. or 2 a.m, he is always there with me. And if I'm shooting a video, he will always be there. He's my best critic, I would say. So he keeps on doing that, and that helps me. That is the driving fuel. And of course my kids, my mom is with me. But then the main thing I think that comes from within, that I'm a very, very hard working person, very diligent, and I hate people who are giving excuses and who are saying like मैम नहीं होता, टाइम नहीं मिलता, आप कैसे कर लेते हो, मेरी तो हेल्थ बहुत ख़राब है, मेरी तो बैक एक होता है. So I hate lazy people, and that is because I'm a very, very hard working person, and as I said, perfectionist. I want to do everything in the fullest extent. और even the kids, they keep getting scolding from me. मैं उनको बोलती रहती हूँ तुम इतने lazy क्यों हो, क्यों नहीं मेरी तरह बनते हो. So I'm their super mom. Yeah, I'm the super mom. So that is the driving factor. Okay. So ma'am, an unmarried woman is more successful as compared to a married woman with responsibilities. Now what is your take on it? See, I'm married, and I think I'm successful. I think the definition of success is different for everyone. I just recently watched that movie Shakuntala Devi. I kind of thought initially that 25% or maybe 50% of her personality matches my personality. I'm a very, very, you can say, I become very dominating when I want to have something. And I have a very strong mind, strong character in that way. But when it comes to my family, when it comes to my passion towards my family, my husband, my kids, I kind of
keep a low profile. So there were many instances during my lifetime when I got married, even after marriage, when I wanted to pursue my career, I wanted to do something different, which obviously was not going with my family values. So I had to drop it. But still, I think I'm successful. So yes, there were certain things, there are certain things which would stop a married woman or a man to achieve that. But then if you go with everything together, because as I said, I love touching all the horizons and I'm a multitasker. So for me, being a good wife and being a good mother also is also a task. So if I've given birth to 2 children, तो मेरे ड्यूटी बनती है कि मैं उनकी तरफ अपना ध्यान रखूं, मतलब उनको भी अच्छा सिटीजन बनाऊं, अपनी तरह सक्सेसफुल बनाऊं. तो उनको इग्नोर करके सिर्फ अपनी ही सीढ़ी चढ़ना, वो मेरे लाइक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. सो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल एंड द सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग है. सम पीपल डोंट वैल्यू देयर मैरिज और देयर चिल्ड्रन, दे जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स. दैट इज नॉट मी. So probably according to you, like your family is actually a backbone. Very, very important for me. So if I hurt them knowingly or unknowingly, I'm not myself. So I can't excel in anything. So for me, success is when they are all together and happy with me. True. So because with your family you can actually rise. Yes. Okay. मैम एक और चीज़ मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप तो बिल्कुल वो संतूर का ऐड ना बिल्कुल वेरीफाई करते हैं कि आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता. सो आई एम रियली क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज़ द सस्पेंस बिहाइंड योर ब्यूटी एंड फिटनेस मैम. I'm a fitness freak since I think I was 12 years old. Because at that time, between 8 to 12 years of age, I remember I was quite plump, and the aunties, my mom's friends, they would say, she looks quite big, she doesn't look 12, she doesn't look 10. And on my TEDx talk And as now well, she doesn't look like 47. yes. So I remember my TEDx talk, the topic given to me was fitness and cash. So in that, I actually told in detail what happened, my journey towards fitness. So initially fitness comes like you should be slim, you should be a zero figure, and then slowly and gradually understand what is exactly fitness. So yes, I think my fitness freak character, because I keep on exercising, I give 1 hour every day. 1 घंटा मेरे लिए फिक्स है कि मैं 1 घंटा खुद को दूंगी, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो जिम हो. एंड देन जो मैं खाती हूँ मैं उसका ध्यान रखती हूँ. बिंज ईटिंग भी हो जाती है कई बार, बट देन मैं नेक्स्ट 2-3 दिन में उसको ठीक कर लेती हूँ. But that is required. दैट इज़ रिक्वायर्ड. लॉकडाउन में मेरा भी थोड़ा वेट बढ़ा था, बट देन मैंने उसको वापस कम कर लिया. तो आई थिंक आई फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन जो है वो आपकी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, आपकी क्या खाते हो उससे उस पर डिपेंड करता है, प्लस आप कैसा फील करते हो. आई एम अ हैप्पी पर्सन, मैं बहुत जल्दी डिप्रेस नहीं होती हूँ, और अगर मूड वेरिएशंस आते भी हैं तो मैं अपने आप ही उसको ठीक भी कर लेती हूँ. आई डोंट नीड पीपल टू पुल मी आउट ऑफ दैट डिप्रेशन. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दैट वे. आई वुड गो लॉक माई सेल्फ इनसाइड द बाथरूम, थोड़ा 2-3 आंसू बहा के वापस आ जाऊँगी. एक दिन गंदा निकलेगा, बाकी सारे दिन अच्छे निकलते हैं. So one thing that I'm learning from you actually is that hardworking, dedication, passionate and perfectionist. Okay. So ma'am, you know we all are obsessed to eating. आपने बोला कि मैंने भी लॉकडाउन में वेट पुट ऑन किया था, मुझे भी खाना बहुत पसंद है, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. बट लॉट ऑफ पीपल यू नो व्हाट, दे गो टू द जिम एंड दे थिंक नाउ वी आर गोइंग टू बिकम स्लिमर एंड मच मोर बेटर, और हमारी वेस्ट लाइन अच्छी मेंटेन रहेगी. बट दे डोंट टेक केयर कि जिम के अलावा हम मुंह में क्या डाल रहे हैं ना. तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात बोली नम्रता. 70% एक्चुअली आपका वेट एंड आपका जो बॉडी फिगर है वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है. ओनली 20 to 30% इज़ योर एक्सरसाइज, एंड ऑफकोर्स थोड़ा सा जेनेटिक कैरेक्टर्स भी होते हैं. बट जिम वाले भी इसीलिए परेशान रहते हैं कि मैम खाते तो फुल है और हमारे पास आके बोलते हैं हमको पतला करो. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो 70% जो आप खाते हो वही रहता है. तो इसलिए मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि अगर आपको भली बिंज ईटिंग करनी है, यू लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, तो ठीक है आप लो, बट देन एक्सरसाइज उसको बर्न आउट करने के लिए करो. एंड अपनी डाइट में, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हैं, तो उसको कट डाउन करके प्रोटीन ज़्यादा लेना है. तो इफ़ यू आर एक्चुअली फिटनेस फ्रीक और आपको चाहिए कि आपका सब कुछ मेंटेन रहे, तो फिर आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए. ओके, एंड येस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको एक्सरसाइज भी रेगुलर मेंटेन करनी है. जैसे आई मीन शी इज़ इवन मेंटेनिंग हर सेल्फ. एवरीबॉडी कैन मेंटेन इफ़ यू आर रेगुलर. ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन मैम. Like market is flooded with weight loss products and health supplements. So let's suppose if someone spot you in the supermarket, where would you be actually? Okay, I will not say I will only be buying the salads and the proteins. ठीक है, मैं हर काउंटर पे जाती हूँ. मैं सबसे पहले अगर लूँगी तो ग्रीन वेजिटेबल्स, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, बट देन मैं ग्रीन वेजिटेबल्स फुल हर तरीके को, आई डोंट लीव एनीथिंग. इफ आई फाइंड समथिंग न्यू वो भी लेकर आती हूँ. एंड आई मेक श्योर, ओ येस, हाई फाइबर फूड, एंड आई लव वेजिटेबल्स. मेरी प्लेट में रोटी कम, सब्जी ज़्यादा होती है, सब्जी दाल ज़्यादा होती है. एंड आई कीप टेलिंग माई पेशेंट्स ऑल्सो कि रोटी कम खाओ, भूख अपने आप मिटेगी, आप वेजिटेबल्स खूब लो.
देन नॉन वेज में आई प्रेफर द हाई प्रोटीन चिकन एंड फिश, ये मैं ज़रूर लेती हूँ। इफ़ आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे अगर फ्रोज़न है या फिर अगर फ्रेश ले सको तो। योगर्ट्स, आई लव योगर्ट्स। एंड देन कमिंग टू कन्फेक्शनरीज, आई लव पेस्ट्रीज, आई लव केक्स, आई लव ऑल द काइंड ऑफ इंडियन स्वीट्स ऑल्सो। तो मेरी बास्केट में सब कुछ होता है, बट देन आई हैव टू सी कि मैं पूरे दिन में कितना क्या खा रही हूँ, कितना वर्कआउट कर रही हूँ। एंड देन आई हैव गॉट किड्स एज वेल इन द फैमिली, तो शॉपिंग तो सभी के लिए होती है। देन आई लाइक स्प्राउट्स, तो मैं पूरे दिन में एक अपना आइडिया लगाती हूँ कि मैं तीनों मील्स में प्रोटीन जरूर लूँ और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आफ्टरनून में। That's a lovely thing. तो कार्बोहाइड्रेट लेना है तो 4 या 5 बजे से पहले ले लो, बिकॉज इफ यू हैव अ स्वीट टूथ लाइक आई लाइक स्वीट्स, तो मेरे को दिन में एक बार तो लेना ही है। यस, एंड आई वाज लाइक दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो 4-5 बजे तक जो स्वीट लेना ले लो, उसके बाद यू जस्ट स्टिक टू प्रोटीन्स। Okay. सो माई बास्केट इज फुल ऑफ एवरीथिंग। Okay, colorful. कलरफुल, यस। Okay. Right. मैम मैक्सिमम लेडीज़ का कहना ऐसा होता है ना कि हम अकेले, जैसे आप भी यू आर डूइंग सो मैनी थिंग्स ऑल टुगेदर, राइट? फिर भी मैं सुनती हूँ ऐसा कि मैक्सिमम लेडीज़ ये कहती हैं कि अकेले हमारे लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फैमिली देखें, बच्चे देखें, किस किस को देखें, या फिर अपने आप को देखें। अब आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? आप क्या लेडीज़ को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा यही है कि पूरे 24 घंटे में से अगर आप अपने लिए 2-3 घंटे भी नहीं निकाल पा रही हैं, तो फिर व्हाट इज़ द यूज़? आई मीन मैंने बहुत पहले बार अक्षय कुमार का वीडियो देखा था, एंड ही इज़ हरियाणवी ना, तो बिल्कुल ठेठ एकदम सपाट बोलते हैं कि मर जाओ जाके। कि अगर खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो, मतलब आप पूरे दिन काम कर रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप खुद के लिए वर्कआउट नहीं कर सकते, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चल लो, कुछ भी कर लो, मतलब बेड पे लेटे लेटे एक्सरसाइज कर लो। हाँ, जिमिंग का टाइम नहीं मिला, ठीक है, आई अंडरस्टैंड नॉट एवरीबडी गेट्स टाइम टू गो टू जिम। सबके फैमिली कल्चर में नहीं होता कि जिम में जाना है। आप घर में कितनी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो और आप जो खा रहे हो वो आपके ऊपर है, कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं खिला रहा है। तो दिस इज़ ऑल, आई डोंट एक्सेप्ट कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे को ये करने का मौका नहीं मिल रहा। आई फील जो वर्किंग लेडीज़ वो कैसे अपना टाइम निकालती हैं, लाइक यू वेरी वेल सेड कि आई एम वेरी बिजी, मेरे क्लिनिक्स भी हैं, ओपीडी है, सर्जरीज हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन स्टडीज ऑल्सो। Apart from that, you have लॉट ऑफ वर्क। मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, हफ्ते में 2 वीडियोज़ उसमें आते हैं। आई डू लाइव सेशंस ऑन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम। देन मेरा फिटिंग ग्लैम भी चलता है, जो कि मैंने अभी लेटली लॉन्च किया, सो आई टेक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज। तो अपनी नींद को कट डाउन करके, अपना कोई ना कोई मील बंक करके, मतलब यू हैव टू कीप अ बैलेंस। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी है तो फिर उसके लिए टाइम निकालना है। तो इट इज़ लाइक यू शुड नो कि आज का दिन अलग जाने वाला है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। एवरी डे मॉर्निंग में एक लिस्ट बनती है मेरे कामों की कि आज मुझे इतने घंटे में ये काम करना है, उसमें भी कभी ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज एमरजेंसी आ जाती है। तो दिस आई डोंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आई डोंट गेट टाइम फॉर। सो जनरली लेडीज से कि हम घर वालों को प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। फर्स्ट लव योर सेल्फ, देन यू आर गोइंग टू लव एवरीबॉडी, राइट मैम? बिल्कुल सही है। ओके, अभी जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, मैं डॉक्टर सोनल परिहार से नहीं पूछने वाली हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर एन एक्ट्रेस इवन, सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर एक्ट्रेस सोनल परिहार, क्योंकि आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। मैम, इस स्ट्रेस भरी लाइफ में जहाँ हम देखते हैं कि एक आम इंसान की, लास्ट काफ़ी समय से हम पहले तो सुनते थे कि एक आम इंसान सुसाइड कर रहा है, बट नाउअडेज देयर आर मेनी पीपल, renowned actors from film industry who are actually committing suicide. तो आप इस स्ट्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इट इज़ इवन अ पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल नाउअडेज. It is, and mental health has, I think, become a very big topic these days, because even the celebrities have started talking, and yes, lockdown has actually lost so many celebrities because of suicide. So I think main thing is कि lots of social media, मैं बच्चों की अगर बात करूँ, adolescents की, because I've got kids, teenagers, social media, the depression, the negative things that they grasp from the social media, that is influencing them. Plus ये lockdown period था भी बहुत depressing, सब लोग mentally, financially, socially down गए हैं. Coming to this Bollywood, I'm very new there. I've just done one movie in Kannada movie. But then what I feel is these people who are committing suicide, these are all young people, and they're totally avoiding their family. They're totally alone. डोंट फॉरगेट योर रूट्स, मुझे ऐसा लगता है. इट इज़ अ मैसेज टू द यंगस्टर्स, क्योंकि मैं अगर आज इस एज में बॉलीवुड या टॉलीवुड में जाती हूँ तो आई स्टिल हैव अ फैमिली टू बैक मी. सो आई एम नॉट इनटू दैट कि मैं 25-30 साल की हूँ और मैं अपना करियर बनाने चली गई, 18 साल की, और मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया. डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, डोंट फॉरगेट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिकॉज दोज आर योर पिलर्स. नए नए फ्रेंड्स बनाइए, बट उनके इन्फ्लुएंस पे इतना मत आइए, इतना ज़्यादा उस वर्ल्ड में मत खो जाइए कि आप खुद की आइडेंटिटी खो गए. आप जहाँ से आए उस रूट्स को मत भूलिए, तो फिर ये सुसाइड और ये डिप्रेशन कभी आपके पास नहीं आएगा. I think that is my message. So, I mean, guys, you need to follow this thing that your family is actually a backbone. Very important.
बिकॉज स्ट्रगल हर इंडस्ट्री में है. आई हैव सीन सो मेनी डॉक्टर्स कमिटिंग सुसाइड. व्हेन आई वाज देयर 9 years आई डिड माय MBBS and MD. इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ एंड लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. तो सुसाइड इज नॉट द आंसर एंड गोइंग मेंटल इज नॉट द आंसर. यू हैव टू कीप अ बैलेंस. Right. Okay, ma'am. Lovely it is. Another question is, what are the techniques that could motivate people to change? Okay. Person like me, a strong-headed person, I don't need any technique because मेरे दिमाग में ही है कि मुझे करना है. बहुत से लोग कहते हैं योगा, meditation helps. People who are slightly unstable in the mind or slightly depressive, then meditation might help. Counseling might help. You are a counselor as well. You must have come across many people who like being counseled. A person like me doesn't believe in this because probably I'm not from that era. आजकल youngsters को बहुत counseling की ज़रूरत पड़ रही है. But for me, I find it very odd कि आप किसी नए बंदे के पास जाके counseling की ज़रूरत पड़ रही है आपको. But then there are people. So I think techniques will differ from one person to another, different personalities. So meditation will help, counseling will help. Talking to your own loved ones is the most important therapy I feel. कि बच्चे हों चाहे बड़े हों, they don't open up, they don't come out with their feelings. और वो अंदर ही अंदर घुटना, अंदर ही अंदर सारी negativities grasp करना and thinking that they're alone, that they're not needed in the world. That is bad. So it could be somewhere like, might be because they don't have that bonding in the family somewhere. I suppose this is even a factor. Maybe, yeah. You can say that, yeah. If there is some marital disharmony, तो सबसे ज़्यादा बच्चों पे फ़र्क पड़ता है. हाँ, तो वो तो बिल्कुल स्पेशल केस हो जाता है. बट आजकल बिल्कुल नॉर्मल लोग भी सुसाइड कर रहे हैं जिनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स प्रॉबली आइदर दे आर रियली हैविंग डिप्रेशन, देन दे नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, और दे जस्ट ग्रास्पिंग इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, और अपने रूट्स भूलकर अपने जो लव्ड वंस हैं उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो मैम काफ़ी लोग, जैसे आपने बोला अभी कि मेडिटेशन एंड ऑल दैट वी हैव बीन एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं हम सब जानते हैं बट दे डोंट वांट टू फॉलो इट इवन. सो इन योर टर्म्स व्हाट इज एक्चुअली हैप्पी लाइफस्टाइल? अ हैप्पी लाइफस्टाइल फॉर मी मीन्स आज का चैप्टर ख़त्म और कल मैंने नया चैप्टर वापस शुरू करना है. एंड दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीवन. एवरीबडी शुड हैव अ मोटिव टू गेट अप. ये नहीं कि वही बोरिंग लाइफ, वही सुबह ब्रश करना है, चाय पीनी है, ऑफिस जाना है. ट्राई टू ब्रेक द रूटीन. मेरी मॉर्निंग की डेली की लिस्ट बनती है कि आज मेरे पास ये काम है. ऑल्दो आई हैव द सेम थिंग्स. हॉस्पिटल जाना है, वही मॉर्निंग के शेड्यूल, दोपहर का शेड्यूल, बट उसमें भी मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट करती रहती हूँ बिकॉज आई गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू. और हर दिन एक्चुअली अलग होता है. अगर कोई हाउस वाइफ भी है तो उसके लिए सब्जियाँ भी अलग होती हैं बनाने के लिए. शी हैज़ टू मेक अ रूटीन कि आज किचन में क्या बनेगा. सो कीप चेंजिंग दैट. देन चेंज योर शेड्यूल कि आज मेरे को अपना स्किन केयर करना है, अपना हेयर केयर करना है, जिम करना है, योगा करना है, उसका भी टाइम चेंज करो. कभी जिम मॉर्निंग में करो, कभी योगा इवनिंग में करो, कभी डांस शेड्यूल बना लो बच्चों के साथ. तो हैप्पी लाइफस्टाइल मीन्स यू हैव टू लाइक finish one chapter and start another chapter. Every day should be a new chapter, so it should not be boring and monotonous. And of course happiness ki definition differs from one person to another. Right. That was actually lovely. Ma'am, last question जाते जाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ. There are many people who believe kismat, destiny, okay, and hard work too. So what is your approach towards it? Okay, 90% hard work, 10% I leave it on the kismat, and I'm a God-fearing person. And I believe in the saying, God helps those who help themselves. Right. There are so many things which I had never dreamed I would be able to achieve. कभी सोचा ही नहीं था कि इस हाइट पे जाऊंगी या फिर ये टैग्स मेरे को मिलेंगे, ये टाइटल्स मुझे मिलेंगे. बट आई थिंक लाइफ के साथ साथ फ्लो के साथ मैं चलती चली गई और जो आया मैं उसको ग्रास्प करती गई, सीखती गई. अभी भी मैं सीख ही रही हूँ. एट दिस एज ऑल्सो आई एम लर्निंग. सो आई फील कि ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि आप जो जैसे जैसे लाइफ जा रही है उसको लेते चले जाओ और अपना हार्ड वर्क पूरा देते रहो. क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे आप अपने डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हो, अपनी किस्मत भी चेंज कर सकते हो. सो फॉर मी 90% इज़ हार्ड वर्क, diligence. So see guys, ma'am, thank you so much. It was really inspiring and it was too motivating, ma'am, really. Thank you very much. So guys, one thing that I have learnt is that one is dedication, hard work, जो कि बहुत ज़रूरी है. And another thing is, if you want to change, then please follow the change. कहने से कुछ नहीं होता, you have to follow it. आपको करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी. एक्सक्यूजेस की लाइफ में कोई जगह नहीं है. कोई जगह नहीं है actually. So it was really amazing, ma'am, to talk on my healthy chat show. Thank you so much, guys. Thank you, Namrata.